السلام علیکم ناظرین، سابق ممبر ضلع کونسل اور ہر دل عزیز شخصیت احسن خان غرگشتی نے اپنے ماجور فارم پر بہت ہی اعلیٰ ایک گیٹ ٹوگیدر کیا ہے، جس میں سول و فوجی اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ ریٹائرڈ سیکرٹری صاحبان بھی تھے، صحافی حضرات بھی تھے، سیاسی شخصیات بھی تھیں، اور اس موقع پر میں نے مختلف سیاسی شخصیات سے گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور جو نشانہ بازی کا مظاہرہ ہوا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں۔ ساری تقریب آپ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ماجور فارم میں ہر سال گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ احسن خان صاحب غرگشتی جو ہیں وہ بڑی مہربانی کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، اور وی وی آئی پی شخصیات بھی یہاں آتی ہیں، دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نواب زادہ چودھری شیر علی خان صاحب، اور سابق ایم پی اے ہیں اس حلقے کے، اور ساتھ موجود ہیں جہانگیر خان زادہ صاحب، تو یہ بھی سابق وزیر ہیں۔ تو ان سے سب سے پہلے جہانگیر خان زادہ صاحب سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ اس گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے کیا کہیں گے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہر سال یہ ایک گیٹ ٹوگیدر ادھر ہوتی ہے ماجور فارم پہ، اور یہ احسن خان تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ جو ہے نا علاقے کے سب لوگوں کو بلا کے ایک غیر سیاسی ایک فنکشن کراتے ہیں، جس میں جو ہے نا خیبر پختونخوا، پنجاب اور علاقے کے جو ہے نا لوگ آ کے جو ہے نا ادھر گپ شپ لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں محفل سجی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب آج سے تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے میں ادھر آیا تھا، اور یہ ساری جگہ کنسٹرکشن تھی، اور اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کیا پلان ہوگا، کیا لے آؤٹ ہوگا، اور آج جو ہے نا وہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اور میں مشکور ہوں احسن خان لالا کا، عامر بھائی کا، انور بھائی کا، کہ انہوں نے ہمیں آج دعوت دی اور آج ہم ادھر
ایک غیر سیاسی مجلس میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں. نوابزادہ چودھری شیر علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس دن کی مناسبت سے ان کے تاثرات لیتے ہیں. یہ گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبیر صاحب. احسن خان نے بڑا اچھا گلدستہ اکٹھا کیا ہے. تمام اپنے دوستوں کو یہاں پر دعوت دے کر، اس سے پہلے بھی بڑے ملک صاحب ملک عطا محمد خان صاحب کے ساتھ یہاں آنے کا مجھے اتفاق ہوا. وہ تو ہر سال یہاں پہ آیا کرتے تھے، تو آج ان کی نمائندگی اور اپنے فیملی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی یہاں پہ اس محفل میں شریک ہوا ہوں. یہ بہت اچھی روایات ہیں ہمارے علاقے کی، اور خصوصی طور پہ اس علاقے میں جو اپنے دوستوں کو اس اچھے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے فارم پہ دعوت دیتے ہیں، اور تمام لوگ بھی شریک ہو کر اس کو محفل کو دوبالا کرتے ہیں. حسن حکیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں اور برہان میں ان کی فیکٹری ہے. گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ کیسا فنکشن ہے. السلام علیکم جی. بہت زبردست فنکشن ہے. احسن خان صاحب، انور احسن خان، عامر احسن خان میرے بہت پیارے دوست ہیں اور فیملی فرینڈ ہیں. میرے پاس گجرات بھی کئی دفعہ آئے ہیں، میں ان کے پاس بہت دفعہ آیا ہوں، لیکن جو گیٹ ٹوگیدر ہے اس میں پہلی دفعہ آیا ہوں، کیونکہ جب بھی ہر سال ہوتی تھی تو کسی نہ کسی کمٹمنٹ کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. تو آج میں آیا ہوں. ویسے تو میں فارم پہ بہت دفعہ آیا ہوں، سالوں سے آ رہا ہوں. جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا اس کی پوری پروگریس میں نے دیکھی ہے. تو ماشاءاللہ خان صاحب بہت گریشیس ہوسٹ ہیں. انہوں نے بہت اچھی گیدرنگ کی ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے. آصف شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہاں موجود فارم میں گیٹ ٹوگیدر ہے، تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ اس گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے، اور سب کا یہاں مل بیٹھنا کتنا فائدہ مند ہے. تو ان کی جو ہے بزرگی ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے جی. احسن صاحب نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے. ایسے گیٹ ٹوگیدر تو اب ہوتے نہیں ہیں پاکستان میں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو شہروں میں ہوتے ہیں. وہ ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور کیٹرنگ کر لیتے ہیں. یہ ایک دیہی ماحول ہے کیونکہ ان کی زمینیں ارد گرد ہیں ساری. یہاں پر سارا یہ ایگریکلچر ان کے فارمز ہیں، اور اسی لحاظ سے انہوں نے یہ گیدرنگ کی ہے. اپنے سارے دوستوں کو بلایا ہوا ہے. مجھے تو انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور میں خود ہزارے کا رہنے والا ہوں. انہوں نے جو یہاں پر ایگریکلچر کے جو اپنی زمینوں کو ٹھیک کیا ہوا ہے، مختلف قسم کے فروٹس ہیں، مختلف قسم کے اجناس ہیں. یہ ایک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جگہ. ایسے مل بیٹھ کے دوستی بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، مل ملاپ بہت ضروری ہوتا ہے. آج کی تیز دنیا میں جہاں بہت کم ریلیکسیشن ہوتی ہے، ایسی جگہ ہے کہ آپ سارے غم بھول جاتے ہیں اور اب لطف اندوز ہوتے ہیں. اعظم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ماجور فارم میں گیٹ ٹوگیدر ہے. احسن خان صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ اس گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے کیا کہیں گے. یہ جی ہر سال بعد احسن خان یہ ارینج کرتا ہے، اینڈ اٹس ریئلی ویری گڈ بیکاز ا لاٹ آف فرینڈز گیٹ ٹوگیدر. سارے ہمارے لوگ دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اینڈ وی ہیو گڈ گپ شپ. گڈ کافی اچھی ہے. کبھی تو 2 سال کے بعد ہو رہی ہے بیکاز لاسٹ ایئر آر سسٹر ڈائٹ، سو اس کے ہم نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے سال کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا. ناظرین، جہانگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری ہیں. تو ان سے تاثرات لیتے ہیں. یہ گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی مہربانی جی. یہ گیٹ ٹوگیدر تو یہ جنہوں نے کیا جی، یہ تو بالکل ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں جی. اور یہ ایک بہت اچھا ایونٹ اس لیے ہے کہ سب دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اور آج کل کی زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے کہ کوئی ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں بڑے اچھے بڑی دیر بعد ملاقاتیں لوگوں سے ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ہے جی مل کر. آج کل نوجوان نسل اس گیٹ ٹوگیدر سے دور ہو رہی ہے. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا کہیں گے کہ نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر ہو اور اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے، اور جتنی دوریاں ہو گئی ہیں وہ کس طرح کم ہو سکتی ہیں؟ بس یہ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. پر یہ دیکھ کر شاید ان کو بھی تھوڑے سے وہ انسپائر ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا اگر وہ یہ کریں، کیونکہ ان کا ہی فائدہ ہے. ناظرین، جواد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ ماجور فارم پہ ہیں جہاں ہر سال گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے.
تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر کتنی ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے. نوجوان نسل کے لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے جی, ساروں کے لیے ضروری ہے. پرانے دوستوں ساتھیوں سے ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے, موقع مل جاتا ہے, تو بہت ضروری ہے. کتنا سکون ملتا ہے یہاں آ کر. شہر سے دور ہیں تو ظاہر ہے جی, صاف آب و ہوا ہے, خاموشی ہے, موبائل کم چلتا ہے, تو ذہنی سکون تو ملتا ہے کافی یہاں پہ. نوجوان نسل کے لیے جو نیٹ کی دنیا میں چلی گئی ہے اس کا کتنا ضروری ہے گیٹ ٹوگیدر. نیٹ بھی ضروری ہے جی, ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجی ہے, اس سے دور تو نہیں ہو سکتے. بہتر ہے ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اویئر رکھیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم موبائل کی دنیا سے نکال کے نیچر کے قریب دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں. عمران نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. معجور فارم میں گیٹ ٹوگیدر جاری ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے اور جو اولڈ ہم لوگ ہیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے گیٹ ٹوگیدر. تو یہ کیا مشورہ دیں گے, ان سے تاثرات لیتے ہیں. ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے, بیکاز ہم بوڑھے ہو گئے اور ہم پوری عمر باری کھیلتے رہے, تو آئی ایم فیلنگ ایٹ ہوم. ینگسٹرس کے لیے یہی مشورہ ہے کہ بیٹا جی باہر آئیں, کمپیوٹرز وغیرہ سے نکلیں. یہ جو ہے دس از ایکچوئل لائف. یہ باغ ہے, فصلیں ہیں, صاف ہوا ہے, یہ مزہ کرتی ہے. دس از گڈ فار ایوری بڈی. آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ کے دماغ کے لیے اچھا ہے, اور آپ کو ریالٹی نظر آتی ہے. جو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر وہ حقیقت بنائی نہیں, وہ بنائی گئی ہے. ناظرین, معجور فارم پہ گیٹ ٹوگیدر کا پروگرام جاری ہے اور اس کے روئیں رواں احسن خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خان جی ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں. پچھلے سال جو ہے کرونا کی نظر ہو گیا یہ پروگرام, اور بہت ہی اچھا ایونٹ کرتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے جذبات اور احساسات کیا ہیں, اور یہ جو اتنی تفریح عوام کو فراہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. بہت مہربانی جی, السلام علیکم. بڑی مہربانی تساں اتنی دوروں تکلیف کی تھی جی. اصل میں یہ ہے جی کہ یہ فارم جو ہے یہ میرے والد کے نام پہ ہے. ان شاعر تھے اور وہ شاعری بھی کرتے تھے, اور ان کا تخلص تھا معجور فارم, مہجور تخلص تھا, تو ہم نے ان کے نام پہ معجور فارم رکھا اس کا. تو ایک یاد ہوتی ہے ان کی, اور اس یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں. اصل میں سکاٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے جی کہ میرے دوست, میرے بیٹوں کے دوست, اور سب لوگ اکٹھے ہوں, آپس میں گپ اپ ہو جائے. آج کل کے زمانے میں کس کے پاس اتنا وقت ہے جی کہ کوئی کسی کے پاس جائے, اور خاص طور پہ شادیوں پہ جانا اور ماتم پہ جانا تو آپ کی پابندی ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ یہ پابندی والی بات نہیں ہے. دوست آتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, گپ لگاتے ہیں, اسکیٹ شوٹنگ ہوتی ہے, اور ایک ہماری روایات جو ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں. بس یہی کچھ ہے. اور ناظرین, اشتیاق خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے, تو یہ بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن خان اللہ لمبی زندگی دے وے. اس انہاں سارے دوستاں اکٹھا کرنے نا موقع فراہم کیتا, اور اتنے آ کے بڑا مزہ آیا. ان لوگ جنہاں نال ملاقات ہوئیں کئی برس گزر گئے, کالج کی زندگی چھوڑی تو اس بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی. اس اج موقع دیتا ہونا ملانے نا, میں سمجھنا یہ بہت ضروری ہے, اور کوشش ہونی چاہیے جی ہر سال یہ فنکشن ہونا چاہیے. پر اصل سارا دوستاں جڑے جینے انہوں نے اس پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جڑے مر جان انہوں دعائے مغفرت کرنی چاہیے. میں احسن خان نے اس قدم انتہائی سراہاں, اور پھر مزے نہیں گل ہے جس طرح پیو بہنا پیا اسی طرح نال اس نے پتر بھی بہنے پے. اج اتنے اس نے اپنے دوستوں تو علاوہ اس نے جڑے بیٹے انہوں نے جڑے دوست ان بھی اتنے شامل ہوں, اور ایک قسم نہ رسم چل پی سی ہر سال انشاءاللہ اس بندے نا اضافہ ہونا رہے سی. تو میں بلکہ احسن خان آج مل کے گل رکھ سا, اس وچ جتنے دوست ہون ان ہر طرح نہ پارٹیسپیٹ بھی کروں, مالی طور سے پارٹیسپیٹ کروں. ایک احسن خان کی ذمہ داری نہیں ہے جی وہ سارا کرے. اصل سارا نہ دوستاں نہ اس نے جاننے والے نہ اس نے رشتہ داراں نہ فرض بننا اس معاملے چ اس نال اسی تعاون کرنا تاکہ سلسلہ اگے لمبا چل نہ رہے. اور آخر میں پھر انہیں ایک بار مبارکباد دینا, انہیں ایک بہت خوبصورت سلسلہ شروع کیتا, اور اللہ کرے یہ سلسلہ
चलना रहे। साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सगीर अहमद कादरी साहब मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि गेट टुगेदर कितना ज़रूरी है और यहाँ आकर इन्होंने क्या महसूस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे ज़ाहिर ज़िंदगी हमारी जिस किस्म के माहौल में इस वक्त हम ज़िंदा रह रहे हैं, ऐसी गेट टुगेदर मैं समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे भाई और दोस्त एहसन ख़ान, जिनके साथ मेरा कोई 50 साल से ज़्यादा हो गया है, आपस में ताल्लुक़ है, ये हर साल ये एक ऐसा फंक्शन करते हैं। ये जो माहौल इन्होंने यहाँ इस वक्त बनाया, ये मुझे आज से वो पुरानी बात याद आ रही। 1974 में जब एहसन ख़ान ने ये जगह इसको आबाद करने का ख़्याल किया था, और उस वक्त पहली दफ़ा यहाँ से, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि नहर से पानी लेने का एक सिलसिला शुरू किया था, और इस इलाके के कुछ लोगों ने इनके ख़िलाफ़ रिट कर दी कि ये पानी नहीं ले सकते। और मुझे याद है कि मैं उस रिट में इनकी तरफ से पेश हुआ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, और अल्लाह के फजल से वो रिट खारिज हुई। बाद में तो इन्होंने पानी का दीगर तरीके से लगाए और बाकी सिस्टम लगाया, और इन्होंने ये सारा सिलसिला, अब ये देखें, ये एक रेतला इलाका था, आज यह बागो बहार है। इसी तरीके से ज़िंदगियों में भी जद्दोजहद से, आपस में प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे के साथ रहने से ज़िंदगियों की बाहर आती है। तो ये मैं समझता हूँ कि एहसन ख़ान जो हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, ये एक तो हम दोस्तों को दोबारा बुलाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, और फिर ये है कि एक इस वक्त के मौजूदा लिहाज से भी एक दिन हमें मिलता है जब हम अपनी तमाम मुश्किलात हर चीज़ से दूर होके यहाँ आके आराम से प्यार मोहब्बत से ये सारा माहौल एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए एहसन ख़ान से का मैं बेहद मशकूर हूँ। अभी ये मेरे दोस्त खालिद ख़ान बैठे हैं, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ हैं। इनके साथ बड़ी बड़ी प्यारी महफ़िलें हुई, बड़े बड़े, और मुझे एक सफ़र याद है जब हम दोनों इकट्ठे बड़े अरसे से नहीं मिले थे, तो ये मुझे कहने लगे कि काजी साहब मिलते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार इस तरह है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, हाई कोर्ट में उस ज़माने में था, तो मैंने कहा लाहौर जा रहा हूँ, मैं अक्सर ड्राइवो में सफ़र करता है, मैं कहा तुम आ जाओ, हम इकट्ठे सफ़र करेंगे। मैंने 2 सीटें बुक कराई, हम दोनों इकट्ठे लाहौर ड्राइवो में, रास्ते में वो बातें की पुरानी, और अगले दिन ये वापस आए। तो ये सारा मुझे आके यहाँ आज के ये सारी बातें याद आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आज का दिन ऐसा है जिसमें हम पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं, ज़हनी तौर पर हम अपने आप को आसूदा महसूस करते हैं, और हम आप सबका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खालिद ख़ान साहब ख़ुद बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ हैं। कोई भी मेहमान हज़रों में आए तो ये उसको बेहतरीन खाना खिलाते हैं, और इनका खाना बहुत मशहूर है। आज ये ख़ुद माजूर फार्म पे आए हैं। मेज़बान चूँकि एहसन ख़ान साहब हैं, आज ये आए हैं, गेट टुगेदर भी एंजॉय कर रहे हैं और खाना भी एंजॉय करेंगे। तो इनसे एहसासात और जज्बात जानते हैं कि मेहमान की जो मेहमान नवाजी है वो किस तरह की जाती है, और गेट टुगेदर के हवाले से ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मटियालवी साहब। मैं एक ख़ास गल की वजह तो माजरत खा भी हाँ, और तुहाडे में मेहमान नवाजी ने रेफरेंस भी थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन किसी वाले माफ़ी ना खाना भी होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। एहसन ख़ान साहब ने एक रवायत है, और इतनी ज़बरदस्त रवायत है कि जिसने इखलास के अलावा और कोई कर्ज़ नहीं है, और इस कदर इन बच्चियां दोनों का और उन्होंने एहतमाम होना है, एहसन खान का मेहमाना इस तरह रिसीव किया जा रहा होना है कि जो एहसन खान का वलीमा है या बच्चियां का वलीमा है या किसी ने शादी बहरहाल, तो बड़ा एहतमाम होना है। और मैं समझना वा कि ये जी रवायत है ये शायद छच ने अलावा शायद ही किधर होए, और हर साल होनी है, और मतलब कितने सालों तो हो रही है। तो कादरी साहब ने भी जिक्र किया, और वाकया बस ना वाकया ऐसा है कि उस वेले ना असां कोई डिस्टर्ब कर सकना है, और मां भी वो सारी गल याद है जी, बल्कि एक शायरी ने भी उस वेले इन्होंने किताब ने बारे भी असां गल की जी, अज फिर गल हुई कि इन्होंने किताब छपनी चाहिए, और फिर इन्होंने कोई टाइम नहीं होना, और बस ने उस वेले सफ़र कर रहा है। और मैं इस गल ते बड़ा खुश हाँ कि
इन्हों को मैं पूछा जी कि तुसी डेवो तो क्यों लाहौर जाने और हाई कोर्ट ने जज भी होते इन्हें कहा कि मैं ये नहीं चाहना कि रस्ते ते जेलम भी पुलिस होवे, वो मेरी गड्डियाँ रिसीव करे, अगों जनाब गुजरात भी, अगों इसी तरह गुजरांवाला भी, और इस तरह खा मखा कार सरकार और इतना खजाने ना खर्च होवे। इस तो बेहतर है कि मैं आराम से आके बैठ गया, तू भी बैठ गया ना, उन्हें किसी ने पता है कि कौन बैठ गया, तो गला भी आप चुप करना है। माशाल्लाह ये इन्होंने नहीं, इनका सारी जी हमेशा ही रही, हर ज़माने च रही, आज भी उसी तरह है। तो इस महफिल नहीं दूल्हे जने हैं इधर फिरने और अच्छे लगने, तो आज तक सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल नाल चढ़े हैं, चलो शुक्र है कि फिर भी चढ़ के आ गए हैं। तो मैं समझना वा कि इन्होंने रवायात कायम रहनी चाहिए है, और इसने बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज हैं। और मेहमान नवाजी हर एक ने बस नहीं गल नहीं भी होनी, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा निभाने पैन। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसां भी गल करने का मौका देता है, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, मोहम्मद ज़करिया साहब दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे हैं और हाल ही में हज़रो कॉलेज से बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। बहुत ही ऐसी शख्सियत हैं, तो इनसे जज्बात और एहसास जानते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मठैलवी साहब, आपकी मोहब्बत। एहसन खान साहब का ये जो इक़दाम है जी, ये हर साल करते हैं। इसकी जो मैं कहता हूँ सबसे एक नुमाया और अच्छा पहलू है कि दोस्त आपस में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो दोस्त हैं वो आपस में मिल बैठते हैं। मसलन उस्ताद मोहतरम मलिक साहब बैठे हैं, आप खालिद ख़ान साहब हैं, आप हैं ख़ुद, और जनाब जस्टिस कादरी साहब हैं, इस इलाके की एक अहम और नुमाया शख्सियत जिन पे यकीनन पूरे छाछ को फ़ख्र है। अब देखें, ये इस पार्टी के बहाने से इनसे भी मुलाकात हो गई, दीदार हो गया इनका। और एहसन खान साहब और उनके जो बच्चे और भतीजे हैं इतने हम्बल हैं, इतना प्यार देते हैं। कल मैंने मैसेज किया जी, मेरी गाड़ी को हमेशा ये ऊपर आने की इजाज़त देते हैं, तो कहते हैं प्रोफेसर साहब आप पहुँचें, आपको गाड़ी पिक करेगी पार्किंग से और ऊपर लाएगी। तो इतना शानदार माहौल अभी ये, मैं तो चूँकि कई सालों से आ रहा हूँ, तो इस दफ़ा इन्होंने एक्सटेंड किया है ये अपना जो बैठने का सिलसिला है, और कुर्सियों की तादाद भी अच्छी खासी है, और बड़ी नुमाया शख्सियात, प्यारे लोगों की अकट। बल्कि मैंने फेसबुक पे लिखा खूबसूरत आदमी की खूबसूरत अकट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इस पे छोटा सा मजमून भी लिखें। वेल डन जी एहसन खान साहब, उनके बच्चे और जो भी दोस्त आए हुए हैं, सबको देखकर मुलाकात करके दीदार करके खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे ये रौनकें, ये मोहब्बतें एहसन खान की और हम की आपस में बरकरार रहें, बल्कि परवान चढ़े। और मठैलवी साहब भी बहुत प्यार देते हैं जी, बड़ी मोहब्बत देते हैं। मुझे याद है मेरे कॉलेज में एक मुशायरा था, योम हुसैन था, इन्होंने फ़ोन किया जी मैं आ जाऊँ। मैंने कहा जी इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि आप तशरीफ़ लाएँ और महफिल को चार चांद लग जाएं। अल्लाह ने भी खुश रखे। थैंक यू जी अहबाब का भी, और एहसन खान साहब का भी, खालिद ख़ान साहब का, मलिक आसिम साहब का, जस्टिस कादरी साहब का, खावर साहब का, आपका, कि हम एक टेबल पे बैठे हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहम्मद अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी है और बड़ी खुशी हुई है कि ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं। तो इनसे तासरात लेते हैं कि ये गेट टुगेदर के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये हर साल ही आते हैं, तो ये अपने क्या जज्बात रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी। एहसन खान साहब का उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है जी। इस इतने बिज़ी टाइम में वो इतने अपने पुराने जितने भी उनके रुफ़क़ा हैं उनको याद रखते हैं, हर साल उन्हें इनवाइट करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और बड़ी अच्छी लोकेशन पे उन्हें एंटरटेन करते हैं। तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। काफ़ी अच्छी हमें करीम यहाँ जेंटली जो है अटैक की और अटैक से बाहर की वो देखने को मिलती है, तो हम उनकी मशहूर है। नाज़रीन, सब दुनिया से ये इंटरव्यू लेते हैं निसार अली खान साहब, और आज मैं इनसे इंटरव्यू लूँगा कि यहाँ गेट टुगेदर में आकर इनको कैसा लगा और ये क्या कहेंगे इस तकरीब के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम शबीर साहब बहुत मशकूर हूँ। एहसन खान साहब हमेशा एक ऐसा मौका फराहम करते हैं कि एक तो हम रिलैक्स हो जाते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकाल कर जब यहाँ पर हम आते हैं, और ये जिस तरह एक नेचुरल हमें नज़र आती है, कुदरती माहौल है, इससे हम बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। और दूसरा, अपने बहुत सारे जो
कई अहबाब दोस्त होते हैं, जैसे ये मेरे साथ शायद इकबाल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, सामने अफसर साहब, वो हालांकि वो हज़रों में लेकिन एक मुलाकात का मौका हमें मिल जाता है, आपस में दिल की बातें कर लेते हैं। और एक मतलब ये ऐसा इवेंट है एहसन खान साहब का कि इसकी तो याद पूरा साल रहती है। नाज़रीन, मरूफ सहाफ़ी सरदार सुल्तान सिकंदर साहब मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि मौजूद फार्म में जो गेट टुगेदर है, इनने आकर कितना इनको यहाँ एंजॉय किया और ये हर साल आते हैं, तो क्या कहेंगे इस गेट टुगेदर के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद फार्म और गुश्ती की ये जो तकरीब है, ये सालाना गेट टुगेदर की एक अपना रवायती तकरीब है। ये तकरीब तकरीबन 3 साल के बाद हो रही है, 2 साल कोरोना की वजह से और 1 साल खान मोहम्मद अहसन खान की हमशीरा मोहतरमा की वफ़ात की वजह से आखिरी तकरीब थी, जिसमें यहाँ मशहूर घुड़सवार मलक अता मोहम्मद खान साहब भी आए थे, कोट फ़तेह खान वाले, उनसे यहाँ मुलाकात हुई थी। अभी हमारी यहाँ रशीद खान साहब से मुलाकात हुई है, तो उनसे मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल दस्तार खान नियाज़ी साहब के बारे में अभी बात हो रही है। तो ये पुराने अभी रास्ते में शेर अली खान साहब एक्स मिनिस्टर जो हैं, अजीज़ मलक अता मोहम्मद खान साहब, रास्ते में मिले, उनसे पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो वो कहते हैं कि ताज़ा खाई दाश्तन गर्दाग आए सीना रहा, गाए गाए बाज खां ये किस्सा पारी न रहा। तो ये मिल बैठने का एक मौका जो है वो उन्होंने अपने इस खूबसूरत फार्म में जिसे मुहैया किया है खान आज़म खान ने और खान मोहम्मद अहसन खान ने। तो ये उनके लिए बड़ी और इंतज़ार होता है बल्कि इस फंक्शन का साल बाद, लेकिन उस खूबसूरत जगह को जिस तरह उन्होंने मेंटेन किया है और जिस तरह वो इसको ये फंक्शन को करते हैं, ये तो हमारे इलाके में भी एक हमारे मलिक मोहम्मद आज़म खान मरहूम होते थे प्लॉट में, गुजर बरदरी के बहुत बड़ी शख्सियत है, वो भी सालाना फंक्शन करते थे। उनका अंदाज़ थोड़ा सा और होता था, लेकिन उनका अंदाज़ और है, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क़ दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। तो मैं मलिक मोहम्मद आज़म साहब का भी जिक्र करता हूँ। और ये जो उनकी भी रवायती तकरीब हुआ करती थी उनकी वफ़ात के बाद, वो तो अभी इनके ये अहसन खान साहब की भी ये तकरीब जो है ये बहुत अच्छी है। तो मैं कहता हूँ कि फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। तो ये इनके दोनों आज़म खान और अहसन खान और उनके बच्चों का ये इखलासमंदी जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और इस्लाम को सरबुलंद रखे। सरदार अदील अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं, ये इस इकट्ठ के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम शबीर साहब। ये तकरीब बहुत अच्छी तकरीब होती है, सालाना दोस्त अहबाब के मिल बैठने की। एहसन खान ये पूरे साल के ये गुलदस्ते इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये बहुत बहुत मेहरबानी इनकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में जान माल में बरकत अता फरमाए। विंग कमांडर अयाज जदून साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मौजूद फार्म में आज गेट टुगेदर है, तो इनके ख्यालात जानते हैं, ये इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरा कोई ज़ाती तौर पे 30-35 साल का ताल्लुक़ है एहसन खान साहब से, और इस पूरे अरसे में माशाल्लाह ऐसी कई फंक्शंस हमने उनकी अटेंड की, और स्पेशली ये जो ईयरली इनका गेट टुगेदर है, तमाम दोस्तों को यहाँ अपने मौजूद फॉर्म पे बुला के इकट्ठा करते हैं, गपशप होती है, खैर खैरियत का पता चलता है, बहुत अच्छा इवेंट होता है। और ये उनकी बहुत बड़ी फ़राख दिली है कि जिन जिन लोगों के साथ इनका ताल्लुक़ इनवेरिएबली कि वो कहाँ के हैं, किस पोजीशन में हैं, कहाँ काम करते हैं, उनको ये याद रखते हैं, और उस यादावरी को रिकलेक्ट करने के लिए हर साल ये यहाँ ये मजमा लगाते हैं दोस्तों का। इनकी एक बहुत बड़ी ये आला एजाज़ है, हम बड़े मशकूर हैं इनके। मैं ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद सब कुछ छोड़ के आज इसको अटेंड करने आया, और मैं सलूट करता हूँ उनकी अज़मत को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। डॉक्टर मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके तासरात लेते हैं, ये गेट टुगेदर के हवाले से क्या कहेंगे। बहुत मेहरबानी मटैलवी साहब आपका। आप हमेशा जो है वो एक बहुत ही अच्छे अंदाज से, स्पेशली जहाँ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों, आप हिम्मत करके आज तक आप पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत ताकत दे, और इस चीज़ को दोस्तों को हाईलाइट करने के हवाले से तो पहले तो शुक्रिया। दूसरा ये कि जहाँ तक एहसन खान जी की बात है, तो वो हमेशा हर साल इस तरह का इवेंट्स करते हैं, जिसमें जहाँ पे चर्च के अलावा जो इनके अपने दोस्त हैं, जो हाई जेंट्रीज़ हैं, जो एक अच्छे लोग हैं, डिफरेंट
पर्सपेक्टिव में, स्पेशली जॉब से रिलेटेड भी, जिस तरह आज हमारा असासा भी हैं, एसेट्स भी हैं चर्च का, शाहिद इकबाल खान DG मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, वैसे गुरगुश्ती से भी इनका ताल्लुक़ है, अक्सर हम इनके पास वहाँ भी जाते रहते हैं। लेकिन इस किस्म के इवेंट्स में खान जी का ये कमाल है कि बहुत सारे लोगों को गेट टुगेदर करके, इकट्ठा करके एक कल्चरली जो है वो हमारे चर्च का नाम भी रोशन करते हैं। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करे। हम दुआ गो हैं कि उनका ये सिलसिला और ये खुशियाँ उनको अल्लाह ताला देता रहे और वो लोगों को इस तरह इकट्ठा करते रहें, वो और उनके साहबजादगान भी। तो मैं मिठालवी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे इंतहाई रिस्पेक्टेबल हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं, शाहिद इकबाल ख़ान से भी वो कुछ तासरात ले लें। बहुत बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, शाहिद इकबाल ख़ान साहब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में डायरेक्टर हैं, इनके तासरात लेते हैं। ये इस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरदार शबीर साहब, डॉक्टर मसूद साहब, अफसर ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तासरात के लिए। तो ये जो गेट टुगेदर है हर साल होती है, आसन लाला करते हैं और यहाँ आने का मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। किस्म किस्म के खाने भी होते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बात कि मेरे प्यारे दोस्त होते हैं जिस तरह मेरे आसपास बैठे हुए हैं और मेरी इनसे मुलाकात हो जाती है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है अज़रो नवाई इलाकों से, अटक से, तो बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ और इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी अपने तासरात बयान करूं। और मैं इन्हीं की वसादत से अपने सब सरदार साहब को, डॉक्टर साहब को, अफसर खान साहब को इनको दावत देता हूं कि कभी आएँ इस्लामाबाद, हमारे ऑफिस आएँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, डायरेक्टर एडमिन HR हूँ, वहाँ चाइना चौक मेरा ऑफिस है। तो मेरी तरफ से इनके लिए एक पुरतकल्लफ दफ्तर के अंदर या बाहर जिधर ये चाहेंगे, नेक्स्ट वीक जब भी आएँ मेरी तरफ से एक उधर खाना इनके लिए इंशाल्लाह। और इसी तरह हम इसी माहौल को एंजॉय, उधर भी इसी माहौल को हम एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हाज़िर अफसर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तासरात लेते हैं कि वो इस गेट टुगेदर के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। बहुत शुक्रिया। आसन खान लाला जिस तरह एवरग्रीन पर्सनालिटी हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इसी तरह वो दोस्तों को जमा करते रहें और ये हम लोग आए हैं इधर इकट्ठे होके एंजॉय कर रहे हैं एक नेचुरल माहौल के अंदर, प्यारे प्यारे दोस्तों से, जैसे शाहिद खान साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इन मेहरबानों से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है। बहुत सारे दोस्त जो अपने अपने काम में मशगूल होते हैं और काफ़ी टाइम मुलाकात नहीं होती, यहाँ पे हम एक पुरफ़ज़ा माहौल में इकट्ठे हुए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आसिन खान साहब को और उनके बेटों को सलामत रखे, उनको सेहत और ज़िंदगी दे और इसी तरह के ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे वो कंडक्ट कराते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुलाम महिउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। ये सलार के मारूफ ज़िम्मेदार सरदार वहीद ख़ान के साहबजादे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि गेट टुगेदर कैसा है और ये इस हवाले से क्या कहेंगे। ये जी इनकी मेहरबानी है, ये लोग कुछ अरसे बाद गैदरिंग कर लेते हैं और सारे जितने भी अहल इलाका हैं उन्हें सारों को इकट्ठा कर लेते हैं और हम सोशली ये बहुत बेहतर है। और बाकी कभी गुजरात के रेलेवेंट कोई चीज़ पूछनी है तो गुजरात के अफसरों से पूछें, मैं तो अभी नया हूँ इस काम में। ये मूंगफली के बहुत ही अच्छे बंदे हैं जी, डॉक्टर लतीफ़ साहब, इनसे अगली बातें आप करें। अस्सलाम वालेकुम। ये जी एहसन खान साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें दावत दी है माजूर फॉर्म्स पर। तो ये ज़िम्मेदारों के लिए एक मौका होता है कि वो आएँ और वहाँ पर अपने अपने इलाके से आएँ, देखें कि यहाँ पर माजूर फॉर्म पर एक तो माल्टे के बागात लगे हुए हैं, फिर अंगूर स्पेशली यहाँ लगे हुआ है। तो ये एहसन खान साहब और हमने मिल के 2015 में ये फॉर्म्स लगाए हैं। तो अंगूर माशाल्लाह यहाँ से किंग रूबी है, फ्लेम सीडलेस है, शुगर वन है, विट्रो ब्लैक है। तो ये यहाँ की मशहूर इकसाम है जो कि अब अटक में ये जो एरिया है यहाँ से काफ़ी अच्छा फ्रूट निकल रहा है। नाज़रीन, नूर मोहम्मद निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि गेट टुगेदर इन्हें कैसी लगी है और यहाँ आकर ये इन्होंने कितना एंजॉय किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एहसन खान साहब ने हमें आज जो है माल्टों की जो दावत की है और खाने की, माशाल्लाह यहाँ इलाके के अहम मक़तदर शख्सियात भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह जो लोकेशन है ये भी बहुत प्यारा है, यहाँ जो इन्होंने तमाम भी किया है वो बहुत ही अच्छा है। और माशाल्लाह यहाँ आकर तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ है और मैं बहुत ही
इससे महसूस हो रहा हूँ। मुमताज़ फरीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये लंदन में होते हैं, इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं, इनसे तासरात लेते हैं। ये इस मौजूद फार्म में होने वाला गेट टुगेदर जो इकट्ठ है उसके हवाले से क्या कहेंगे? आज का जो इवेंट हो रहा है आसन खान लाला जो कर रहे हैं, ये सालों साल कर रहे हैं। आसन खान लाला एक वाहिद बंदा, चंद एक बंदे जो रह गया छच जरा अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना सालों साल गेट टुगेदर कर रहे हैं, जिसने अपने प्यो दादे परदादे निया दोस्तियां अज भी रखियां। कई कई जगह जो लोग जाइन इस खुशी विच ते अल्लाह असां सेहत देवे ते अल्लाह असां कामयाबी देवे। नाज़रीन, राजा यासीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, साबिक़ मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, तो इनसे तासरात लेते हैं। ये आज गेट टुगेदर के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैजूर फार्म पे आके बहुत खुशी हुई और एहसन खान साहब की जो मेहमान नवाजी है उसको देख के भी दिल खुश हुआ। खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत लोग हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, धूप बड़ी प्यारी है और यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ़ तरह के हज़रात मौजूद हैं, दोस्त यार मौजूद हैं, गपशप हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। ये मैजूर फार्म पे एहसन खान साहब ये तकरीबन हर साल इस तरह का एक प्रोग्राम करते हैं। माशाल्लाह बड़ा फार्म है और इसकी अपनी इनकी यहाँ पे लाइफ स्टॉक भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के सारा सिलसिला है, पौधे हैं और बड़ा। तो हमारे सामने इस वक्त इनके अपने जो बाग हैं उसके बाल्टे भी पड़े हैं, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ भी पड़ी हैं, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। इस तरह की गेट टुगेदर शादियों में या दीगर मौके पे तो होती है, लेकिन दोस्तों को बुलाना, मिल के बैठना, ये एक बड़ा खुशाइंद मैं समझता हूँ इक़दाम है और मैं एहसन खान साहब और उनके साथियों को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ हाजी ग़ुलाम अकबर जट मौजूद हैं, ये बड़ी दूर से आए हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से, तो इनके तासरात लेते हैं कि मौजूद फार्म पे जो गेट टुगेदर हुई है उस हवाले से ये क्या तासरात देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत बड़ा सुकून मिला है क्योंकि ये कैक्चर जो है बहुत पहले से चल रहा था, अभी ख़त्म हो रहा है, इसलिए आज ये इकट्ठ हुआ है। बड़ा बेहतरीन माहौल था, बड़ा पुरसकून माहौल था, बड़ा अच्छी गैदरिंग थी जिन्होंने इंतज़ाम किया, बहुत इंतज़ाम किया। ले हम इधर आकर बहुत खुश हुए हैं और हमने इधर बहुत कुछ सीखा है, इसलिए ये हुकूमत को भी चाहिए ऐसे ऐसे प्रोग्रामों को कैल करें और हर आदमी इस प्रोग्राम में शामिल हो। आप चूँकि जट फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, यहाँ आकर इस माहौल में आकर कितना सुकून मिला? बड़ा सुकून मिला है क्योंकि देहातों में ये भी इंतज़ाम होते थे, अभी उधर भी ख़त्म होते हैं। ये बहुत अच्छा, सब पढ़े लिखे हज़रात मौजूद थे, हम इनको देख कर बहुत मुतासर हुए। नाज़रीन, मौजूद फार्म में अब एंडिंग है और मेरे साथ आमर एहसन खान मौजूद हैं, ये लाला एहसन खान के साहबजादे हैं, तो बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और हर साल ये करते हैं गेट टुगेदर, तो इनके तासरात लेते हैं, ये इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। कोई भी ज़मींदार जो है वो तभी ज़मींदार होता है जब उसका दिल जो है और उसके जो दस्तरखान है वो खुला हो, और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि सालाना हम इस फंक्शन में यारों दोस्तों को इकट्ठा करें, एक मिलने जुलने का बहाना होता है, और उसके साथ साथ दिसंबर के दिन में इस धूप को एंजॉय भी करते हैं और कोई थोड़ा बहुत साथ खाना भी हो जाता है। नाज़रीन, अनवर एहसन खान मेरे साथ मौजूद हैं, ये लाला एहसन खान के छोटे साहबजादे हैं, तो इनसे तासरात लेते हैं। इन गेट टुगेदर का प्रोग्राम जो किए इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी जी, सारे लोगों ने जड़े आए, साड़ी कोशिश होनी एक बंदा साल जाई वही ट्रके ने जिससे मुख्तलिफ वालद साहब ने भी दोस्त आने, पाई ने भी, मेरे भी दोस्त, तो सारे आप मिल बह के गपशप ला गए, कोई गल्लां बंदा याद कर गए, अच्छियां यादां रहनियां, लोग अगले साल भी इंतजार करने असां दोबारा बुलाओ। सो बड़ा एक अच्छा अजकल ने दौर है, लोगों को एवं जिंदगी इतनी मसरूफ है, इस दौरान के खुली फिजाज बहने गपशप लाने मुलाकात हो गई, सो ताल्लुकात एक कायम रहने, चलना रहना सब कुछ सिलसिला। ये काम तो बहुत मुश्किल है, किस तरह अंजाम देते हैं? ज़ाहिर जी मुश्किल तो ज़रूर है, बड़े इतना इंसान करना है, आदि हो गए हैं, कोई थोड़ा बहुत नौकरी ना चीज़ा ने तो ये चीज़ा करने रहे हैं, इवेंट वगैरह मैनेज, तो उसने करके थोड़ा स्ट्रक्चर करके ना चीज़ा करने हैं मैनेज, पर लोगों का शुक्रिया जो इतना टाइम कट के साढ़े को आने तो सारा उन्हें बख्शना। नाज़रीन, मेरे साथ मलिक अंसार साहब मौजूद हैं, यहाँ मौजूद फार्म में गेट टुगेदर प्रोग्राम जारी है, तो इनके तासरात लेते हैं, ये इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एहसन खान लाला का, अनवर ख़ान का, आमिर ख़ान का इंतहाई मशकूर हूँ कि हर साल ये मौजूद फार्म पे गेट टुगेदर होती है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के
بیوروکریٹس، پولیٹیشین اور جو ہمارے لوکل جتنے بھی لوگ ہیں یہ آتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ چھچ کا یہ وہ ایریا جو انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں احسن خان لالا اور ان کے بیٹوں نے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیسی ڈش سے انٹرٹین کیا جاتا ہے، اور جس طرح یہ ہمارے پاس مکئی ہماری چھچ کی ہے، مونگ پھلی ہمارے چھچ کی ہے، یہ جلیبی، مولی، گاجر جو ہماری لوکل مطلب یہاں ان کے فارم پہ یہ ساری چیزیں کاشت ہوتی ہیں، تو بہت زبردست طریقے سے یہ انٹرٹین کرتے ہیں. اور اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اس قسم کی ہر جو سال بعد ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ یہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک تو میل جول بھی ہو جاتا ہے، اور ایک ہماری چھچ کی جو روایات ہیں، جس طرح ہمارا اسپیشل ڈش ہے یہاں کی کٹوا، بہت دور دور سے لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں. اور احسن خان لالا ہر سال کٹوے سے جو ہے وہ ایک جو ہماری اسپیشلٹی ہے اس کو تھرو آؤٹ پاکستان جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں ان کا اور ان کے بیٹوں کا. ناظرین، آپ کو ماجور فارم میں ہونے والی گیٹ ٹوگیدر بھی دکھایا ہے اور بہت ساری شخصیات کے تاثرات بھی آپ تک پہنچائے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ماجور فارم سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.